Hello kids, this is mentor Neetu. We are doing chapter 9 data handling of class 6. So let us start. So before we learn some techniques of handling data, now introduction. Before we learn some techniques of handling data, let us first find out what data is. Suppose your class wants to go for a picnic. The class teacher will have to find out many of you want to go and which place like this, when to visit, what means of transport use. So there are so many information, so many things teacher wants to collect. आप कहाँ जाना चाहते हैं, how many are going, or by which transportation we are going, right? So how long should the visit last, कितना time period होगा, 1 day होगा, 2 days का होगा, 3 days का होगा. So it depends, right? So and what will the students have to carry with them? आपको स्टूडेंट्स को अपने साथ क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी. सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू कलेक्ट, राइट? सो सच एंड मेनी मोर क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड. So for this, a lot of information needs to be collected. So not all the information will be relevant or of use. So if the school will provide the bus for the picnic, the teacher doesn't need to consider other means of transport, right? So much information, so many data we have to collect if we are organizing something. So data, what is data? We are talking about data. Mr. Sameer Sen, the teacher of 6th, plans to take his students for a class excursion. So before he plans the trip, he has to get various pieces of information. First and foremost, he has to find out where the students would like to go, right? He has to collect information about many facts such as availability of good food, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे अच्छा food मिले students को. The second thing is cost of transport, आने जाने का कितना spend करना पड़ेगा. Availability of accommodation facilities and the charges, जहाँ पे students को रहना है कैसा है और उसके क्या charges हैं, right? So collection of these pieces of information is nothing but data, right? So hence data is the collection of information or facts. जो भी हम information collect करते हैं, that is data. It may be a collection of numbers, figures, words or symbols. ये जो हमारा data है ये किसी भी form में हो सकता है, words हो सकता है, symbols हो सकता है, numbers हो सकते हैं, right? So let us see now. The next is collection of data. Data collected by the source is in its original form is called raw data. Suppose I want the marks of children of my class, so I will ask from them and then I will write on a paper. So that is what I am writing randomly. तो वो क्या है, एक rough data है. Rough means that is the raw data. Okay, so this data is neither processed nor manipulated. For example, the marks obtained by 30 students in a class are, एक class के 30 students हैं, उनके जो marks हैं, that is the raw data. So this data is in the original form. So this is known as primary or raw data. Okay, जो data हमारे पास original form में available होगा, that is the raw data or primary data. I hope it's clear to you. Now, each of the above numerical values is known as observation. जो जो इसमें number हैं उनको हम बोलते हैं observation. Okay, the data in this form seems to be unmanageable, so it can be arranged in either ascending or descending order. रॉ डाटा को हम मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सो लाइक दिस इट हैज बीन अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर.
So the raw data when arranged in systematic order, जब उसको हमने अरेंज कर दिया ओरिजिनल डाटा को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया, तो वो क्या बन जाता है हमारा एरे डाटा, राइट। जो भी ओरिजिनल डाटा है जब उसको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर की फॉर्म दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा एरेड डाटा। फाइन, I hope it's clear to you. So these small definitions should be clear to you. It is very useful for the higher classes. Now, organization of data. After collection of data, the investigator has to find ways to condense them in tabulate form in order to study their salient feature. Such an arrangement is called organization of data. उसको organize करना ताकि उसको हम further study कर सके, उसमें से और conclusions हम find out कर सके. So the numerical observation collected by an observer cannot be put to any use immediately and directly. So that is why it is called a raw data. जब भी हम एक ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करते हैं उससे हमें एकदम कोई रिजल्ट या कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले हम उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. द रॉ डाटा कैन बी अरेंज्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वे, एज आई टोल्ड यू, सीरियल ऑर्डर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हम उसको सीरियल ऑर्डर यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाल सकते हैं. जैसे आपके कुछ स्कूल्स में कुछ क्लासेस में क्या होता है, स्टूडेंट्स के नेम अल्फाबेटिकली लाइक ए जो लेटर है वो स्टूडेंट्स पहले आएंगे, उसके बाद बी, देन सी, लाइक दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स. एंड द अदर वे इज असेंडिंग ऑर्डर एंड द last way is descending order. As I told you, ascending order means increasing and descending order means decreasing, right? So now the raw data when put in ascending or descending order of magnitude, it is called an array, as I told you this thing. So let the marks obtained by 30 students of class 6 in a class test out of 50 marks according to their roll numbers be, suppose हमारे पास ये एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, राइट. सो इफ वी अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो हमारे पास क्या आएगा, इट गिव्स अस अ स्लाइटली बेटर पिक्चर. इन असेंडिंग ऑर्डर द डाटा लुक्स एज फॉलो. हमारे पास एक अरेंजमेंट आ गया और डाटा हमें एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में दिखाई दे रहा है. ऐसे इसको हम अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये ऐसे हमें दिखाई देगा, right? So if the number of observations is large, then to make it easily understandable and clear, we can tabulate data in the form of a table. अगर हमारे पास नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लार्ज हैं, तो what to do? हम उसको एक टेबल की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं. So see how? So in the first column of the table, we write all marks from lowest to highest. We now look at the first value in the given raw data and put a bar, vertical line in the second column opposite to it. Now we see the second value in the given raw data and put a bar opposite to it in the second column. This process is repeated till all observation in the given raw data are exhausted. The bars drawn in the second column are known as tally marks, and to facilitate we record tally marks in bunches of 5. यानी fifth tally marks is drawn diagonally across the first 4 as this. I am telling you about tally marks. अगर suppose observation 1 time है तो आप एक vertical line draw करेंगे. This is the tally marks for 1. अगर 2 है तो आप क्या करेंगे, 2 वर्टिकल लाइन. इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी. जो टेली मार्क्स है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे. जैसे आप देखो 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के, तो हम यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. ऐसे ही 5 मार्क्स हैं, वो कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के, तो आप 2 वर्टिकल लाइन. Suppose like 17 marks, how many students are getting, 3 students के, यानी 17 कितनी बार आ रहा है, 17
इज कमिंग 3 टाइम्स, तो हम क्या लेंगे 3 वर्टिकल लाइंस। सिमिलरली जैसे 19 है, 19 4 टाइम्स कमिंग, तो हम 4 वर्टिकल लाइन। अब सपोज कोई और नंबर है जो 5 टाइम है, तो 5 टाइम के लिए हम क्या करेंगे 4 and 1 बंच बना देंगे। 4 and 1 का बंच, दैट इज दिस, इट इज सेड टू बी बंच। ओके, 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 and 1 डायगोनल, राइट। अगर सपोज 7 है तो 7 को आप कैसे लिखेंगे 5 and 2। ऐसे ही 8 है तो 5 and 3। ओके, 10 है तो आप 2 बंच ले लेंगे 5 and 5। ओके, तो आपने क्या करना है, एक में आप जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है हमें एक कॉलम में हम वो लेंगे, सेकंड कॉलम में हम टेली मार्क्स लेंगे, और थर्ड कॉलम में जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, वो हम लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आपने क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे मार्क्स गिवन है, तो उसको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख देंगे। यानी लोएस्ट कितना है 1 है और हाईएस्ट कितना है 41 है, तो हम जितने भी मार्क्स हैं उन सबको यहाँ पे लिख देंगे, और फिर हम अपने टेबल में फाइंड आउट करेंगे कि 1 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, तो वो जितना भी है उसके अकॉर्डिंग हम टेली मार्क्स यूज करेंगे, राइट। सो दिस वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नाम आ गया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो मार्क्स आर कॉल्ड द वेरिएट्स एंड द number of students who have secured a particular mark is called frequency of the variate। जितनी बार कोई नंबर अकर करता है, जितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन अकर करती है डाटा में, दैट इज व्हाट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। फाइन, सो दैट्स व्हाई दिस टेबल इज सेड टू बी, इसका हमने क्या नाम दे दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी जहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हर एक ऑब्जर्वेशन की। फाइन, सो द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एग्जाम में ये 1 मार्क का क्वेश्चन डाल देते हैं टीचर्स, लाइक व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स इन अ गिवन डाटा, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो नाउ कम टू नेक्स्ट। So now we are doing example 1. Given below are the ages of 25 students of class 6 in a school. Prepare a discrete frequency distribution table. हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 के, उनकी एजेस गिवन है, तो हमें उसे अरेंज करना है। ओके, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसमें हम 3 कॉलम्स लेते हैं। जो भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है वो हम 1 कॉलम में लेंगे, सेकेंड कॉलम में टेली मार्क्स एंड थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी, राइट। नाउ एज गिवन, तो आप एज का एक कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले आप मिनिमम एज फाइंड करेंगे। मिनिमम इज स्मॉलेस्ट नंबर इज 14, तो हमने लिख दिया 14। देन आफ्टर 14 15 इज कमिंग, देन 16, देन 17। अब आपने क्या करना है, आपने 14 देखना है, 14 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 14 इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम्स, 14 की फ्रीक्वेंसी क्या है। सो 1 2 3 4, 14 इज कमिंग 4 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी इज 4, और आप टेली मार्क्स क्या बना देंगे 4। ओके, लाइक दिस 4 vertical lines। Then 15 is coming how many times, you can count it, it is coming 8 times, 8 means 5 and 3, right। Then 16 is coming 10 times, तो इसमें 2 bunches बन जाएंगे 5 and 5, and the next is 17 is 3 times, so 17 is 1 2 3 vertical lines। I hope it's clear to you। और यहाँ पे एक very important thing, आपने इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है।
नंबर्स को ऐड किया, हमारे पास 25 है और यहाँ पे हमारे पास 25 स्टूडेंट्स की एजेस गिवन है। इट मीन्स हमने सारे के सारे ऑब्जर्वेशन, सारे के सारे नंबर्स ले लिए हैं, नथिंग इज़ लेफ्ट। ओके, कई बार हमें काउंटिंग करने में कुछ हम मिस्टेक कर देते हैं, तो वो हमारा यहाँ टोटल से अगर मैच हो जाएगा इट मीन्स वी आर डूइंग करेक्ट, एंड इफ इट इज़ नॉट मैचिंग तो आपको उसको दोबारा से चेक करना है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, इट्स वेरी ईजी, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में जैसे पिक्टो पिक्चर, एक पिक्चर्स की हेल्प से ग्राफ बनाना। There are many methods of representing numerical data pictorially. One of the methods is to use picture symbols. Representation of numerical data by using picture symbols is called pictograph. Following examples will help to understand pictograph. Like example 2 over here, the number of footballs sold by a shop during a week are given below. नंबर ऑफ डेज गिवन है और नंबर ऑफ फुटबॉल सोल्ड गिवन है। लाइक ऑन मंडे कितनी बॉल सेल हुई 10, ट्यूसडे को 20, वेडनेसडे को 25, लाइक दिस। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोग्राफ की हेल्प से। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप 2 कॉलम्स लेंगे। एक कॉलम में जो भी हमें लाइक हियर डेज गिवन, तो उसमें हम डेज मेंशन कर देंगे, और जो नंबर्स है नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर सिंबल्स की हेल्प से। सिंबल आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे फुटबॉल है तो उन्होंने एक लाइक दे हैव टेकन लाइक दिस अ फुटबॉल शेप राउंड करके। ओके, सो अब आपको नंबर्स भी देखने हैं। नंबर्स हमारे पास क्या है, लाइक 10, 20, 25, 15, 35, 30। अब देखो 35 फुटबॉल बनाना दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम उस सिंबल को 10 के इक्वल ले सकते हैं, 20 के इक्वल ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन, ऑन द नंबर्स, ऑन द फ्रिक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे सारे के सारे नंबर्स जो है वो 5 से डिविजिबल हैं। तो हमने इसलिए एक फुटबॉल को इक्विवेलेंट ले लिया 5 फुटबॉल्स के, राइट। तो आपके पास क्या आएगा, लाइक मंडे को कितनी बॉल्स सेल हुई 10, तो कितने सिंबल आ जाएंगे 2 बॉल्स। यहाँ पे 20 है, 5 4s are 20 यानी 4 बॉल्स। ओके, ट्यूसडे में 4 बॉल्स। देन वेडनेसडे 25 है तो कितने सिंबल्स आ जाएंगे 5 5s are 25। देन थर्सडे को 15 है यानी 5 3s are, तो कितनी बॉल्स आपने ड्रॉ करनी है 3। ओके, देन 35 है, 35 5 7s are, तो आप क्या करेंगे 7 बॉल्स ले लेंगे। एंड देन सैटरडे को 30 है तो आप कितने सिंबल्स ले लोगे 6। इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। हमें जो स्केल है वो अपने आप चूज करना है। कई बार स्केल क्वेश्चन में गिवन होगा, देन यू हैव टू टेक दैट वन ओनली। लेकिन इफ इट इज़ नॉट गिवन तो आप अपनी चॉइस का अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू, इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। जब आप और क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस इज एज फॉलो। अब 5 विलेज हैं, ABCD उनके नाम हैं। प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग 1 सिंबल। अब देखो उन्होंने यहाँ पे सिंबल बता दिए कि एक सिंबल को हमें लेना है 10 एनिमल्स के इक्वल। 1 सिंबल टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके हमें आंसर्स देने हैं। तो आपने देखना है, वही आप 2 कॉलम्स लेंगे, एक में आप लेंगे विलेज और एक में आप लेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, और जो भी हमारा स्केल है वी हैव टू मेंशन इट। तो यहाँ पे इन्होंने सिंबल दे दिया है, हम अपनी चॉइस का नहीं लेंगे, जो सिंबल गिवन है हम उसको ही यूज करेंगे। तो सिंबल इज दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज इक्वल टू 10 एनिमल्स। अब हम यहाँ पे विलेज के नेम लिख देंगे ABCDE। अब हम A पे आएंगे। A में हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर 80।
80 एनिमल्स का मतलब क्या है, कितने सिंबल्स होंगे हमारे पास। 10, एक सिंबल 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 80 को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 8s मीन्स 8 सिंबल्स वी हैव टू ड्रॉ फॉर विलेज ए। ओके, देन बी के लिए 120 है, तो 120 डिवाइड बाय 10 दैट इज 12। तो आप कितने सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, 12। ओके, देन सी में 90 है, तो हाउ मेनी सिंबल्स विल यू टेक, आप लेंगे 9 बिकॉज 10 9s are 90। नाउ डी में 40 है, तो हाउ मेनी यू विल टेक, 4। ओके, देन ई में 60 है, तो हाउ मेनी यू विल टेक, यू विल टेक 6। ओके, तो ऐसे आपने इसको ड्रॉ कर दिया। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जब आप ड्राइंग करेंगे आपको खुद भी इंटरेस्ट आएगा, एक एक इंटरेस्टिंग जॉब है। ओके, उसको बनाना फिर उसको देखना, यू फील गुड। सो ए पार्ट, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। अब वो कह रहे हैं कि ई विलेज के लिए हमने कितने सिंबल्स ड्रॉ किए, तो वी कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 बिकॉज ई में 60 है, तो 6 सिंबल्स आएंगे। सो आंसर इज 6। 6 symbols represent animals of village E. Now B part, which village has a maximum number of animals? Which village? Village B. Okay, सबसे ज़्यादा B में है। And which village has more animals? Village A और C. A और C में दोनों में किसके पास ज़्यादा है? A में 80 है और C में 90 है, तो village C has more animals. Okay, so it's very easy. Now come to exercise 9.1. So question number 1, you know what is data, you can write it. Question number 2, study the following frequency table, then give the following answer. आपके पास एक टेबल गिवन है, हमें इसमें से आंसर करना है। लाइक विच आइटम इज द लीस्ट पॉपुलर, आइटम्स गिवन है और नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो विच आइटम इज द लीस्ट पॉपुलर, जो सबसे कम है, सबसे कम है मैंगो जूस। ओके, एंड द बी पार्ट, नेम 2 आइटम्स हुज पॉपुलैरिटी इज सेम। कौन सी 2 आइटम्स की पॉपुलैरिटी सेम है, दैट इज गुआवा एंड ऑरेंज, दोनों का 7 बॉटल्स हैं। देन विच आइटम इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सी है, सबसे ज़्यादा नंबर 8 बॉटल्स मिक्स्ड फ्रूट जूस। ओके, तो ऐसे हम आंसर्स करेंगे क्वेश्चंस के, इट्स वेरी इजी। नाउ हियर लाइक 4th क्वेश्चन, data is given, prepare a frequency distribution table, so you can try these sums on your own. Now come to 7th question, a survey was carried out in a certain school to find about different modes of transport used by students to travel to school every day. अब हम स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे बस से आते हैं, कुछ रिक्शा से आते हैं, कुछ अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, कुछ वॉकिंग करते हैं। सो लाइक दिस वन क्वेश्चन इज गिवन, 30 students of class 6 were interviewed and the data obtained was displayed in the form of a pictogram. तो कुछ हमें डाटा गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। यू कैन सी मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग, कैसे आ रहे हैं, स्कूटर, पब्लिक बस, स्कूल बस, साइकिल या वॉकिंग, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक जो सिंबल है वो एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो नाउ लुकिंग एट द अबव पिक्टोग्राफ, क्विकली आंसर दीज क्वेश्चन। अब पिक्टोग्राफ गिवन है, हमें ड्रॉ नहीं करना, ऑलरेडी इट्स गिवन, हमें इसको देख के आंसर करना है। नाउ ए पार्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु यूज स्कूटर एज अ मोड ऑफ ट्रेवल। So how many students are using scooter as a mode of travel? 1 2 3 4. So what is answer? Answer is 4. B part, find the number of students using cycle or walking as a mode of travel. तो साइकिल से कितने स्टूडेंट्स जाते हैं, 1 2 3, एंड वॉकिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए, 10। नाउ विच इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रेवल, सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर है, दिस, यहाँ पे ज्यादा सिंबल्स है, इट मीन्स स्कूल बस इज मोस्ट पॉपुलर।
Okay, I hope it's clear to you. It's very easy. Now 8th and 9th question given. यहाँ पे आपको like 9th question में in the half yearly examination the marks obtained by a student in each subject out of 100 are given below. एक स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है एंड मार्क्स 70, 65 in Hindi, 90 in maths, 80 in science and 70 in social science. So represent the above data by a pictograph and answer the following question. अब देखो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, बट यहाँ पे हमें सिंबल नहीं दे रखा है, ना ही कुछ भी स्केल दे रखा है, तो आप अपने आप कोई भी सिंबल चूज करेंगे और अपना स्केल चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर्स गिवन. आपके पास क्या है, 70 है, 65 है, 90 है, 80 है, 70 है. सो ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10. लेकिन आप कहेंगे यहाँ पे 65 में हम कैसे करेंगे, 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 10. सो हियर मार्क्स गिवन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सिंबल चूज कर लेंगे इक्वल्स टू 10 मार्क्स. लेकिन जब हम 65 को, अब आपके माइंड में आएगा 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, देन व्हाट टू डू. तो 65 इज 60 प्लस 5. तो आप क्या करेंगे, 6 सिंबल्स तो ले लेंगे कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, और 5 के लिए हम क्या ले लेंगे, इसका हाफ ले लेंगे. ऐसे कंप्लीट ना लेके हम उस जो भी हमने सिंबल डिसाइड किया उसका हाफ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 5. Okay, I hope it's clear to you. So you can try this sum, like in which subject are the maximum marks obtained. सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, मैथ्स. बी पार्ट, इन विच सब्जेक्ट डज द स्टूडेंट नीड टू इम्प्रूव अ लॉट, मीन्स किस में मार्क्स कम है, हिंदी. ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स. मैक्सिमम इज 90, मिनिमम इज 65. We can find the difference, means we can do the subtraction. Okay, so now we are talking about next is our bar graph. Very interesting. When the given data is large and also not in multiples of a number, it is difficult to draw pictograph. जैसे अभी हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ किया था, हमने एक सिंबल को इक्विवेलेंट टू 1 नंबर ले सकते हैं, लाइक 100 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है कि नंबर जो डाटा है वो काफ़ी लार्ज है और हम उसे किसी नंबर का मल्टीपल नहीं चूज कर सकते. इन दैट केस अ बार ग्राफ कैन रिप्रेजेंट एनी न्यूमेरिकल डाटा इफेक्टिवली. सो हेयर इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स वी यूज बार्स. यहाँ पे हम पिक्चर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे बार्स यानी रेक्टेंगल्स. Okay, when numerical data is represented as column on a graph, this graphical representation of data is called a bar graph और इसको हम column graph भी बोलते हैं. bar means हम bars, ये rectangles लेंगे ऐसे. Okay, right? I'm showing you it. Now properties of bar graph. पहले हम इसकी properties learn करते हैं. जो हम बार्स लेंगे, द फर्स्ट वन, बार्स में बी ईदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. वी ऑफन यूज वर्टिकल बार्स. हम ऐसे बार्स लेंगे तो ये वर्टिकल है, अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है. नॉर्मली हम वर्टिकल बार्स को प्रेफर करते हैं, ये थोड़ा इजीली ड्रॉ हो जाता है. ओके, द सेकेंड वन, द हाइट और लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ द डाटा. जो भी हम बार बनाएंगे वो नंबर जो भी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग. ओके, हम बार की जो हाइट है वो डिपेंड करेगी नंबर के ऊपर. अभी आप देखेंगे, इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. एंड विड्थ ऑफ द बार ऑलवेज रिमेन्स इक्वल बट हाइट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डाटा. जो हम एक बार ग्राफ में वी विल यूज बार्स अकॉर्डिंग टू द डाटा, उनकी जो विड्थ होगी, जो हम बार्स जैसे ये है, ये ऐसे नहीं आप कर सकते कि आप एक ही क्वेश्चन में ऐसे बार्स ले लो, एक वेरी स्मॉल साइज और एक थोड़ा सा बिग साइज, मीन्स उसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है, तो दिस वुड बी रॉन्ग. हमें जो भी बार्स लेने हैं वो इक्वल विड्थ के लेने हैं. ओके, एंड
उनकी जो हाइट होगी वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो तो डिफरेंट होगी, बट जो उनकी विड्थ है दैट मस्ट बी सेम, राइट। एंड बार्स आर इक्वली स्पेस्ड, जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा वो भी हम लेंगे सेम, इक्वल। एंड बार्स में बी शेडेड टू मेक देम अट्रैक्टिव, हम उसको कलर कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं उसको, उसकी जो अपीयरेंस है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एंड बार ग्राफ्स आर यूजफुल फॉर विजुअल कंपैरिजन ऑफ द गिवन डाटा, और बार्स को हम देख के ईजिली कंपेयर कर सकते हैं आपस में डाटा को। सो इट्स वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव। सो लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बार ग्राफ। अब हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो स्टेप 1, ऑन द बार ग्राफ ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस एंड अ वर्टिकल लाइन y एक्सिस। जब भी हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है we need two axes, one is x axis and the other is y axis। horizontal line को हम बोलते हैं x axis और vertical line को हम बोलते हैं y axis। Step 2, along the horizontal line mark points at equal distances and write the name of the items for which the data is to be represented। जैसे भी पीछे हमने क्वेश्चन में सब्जेक्ट लिए हैं, सपोज हमने x एक्सिस पे सब्जेक्ट लेना है, आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल और रूलर 1 सेंटीमीटर ऐसे मार्क कर लो, ओके। फिर आपने सपोज एक बार लेना है, फर्स्ट बार अकॉर्डिंग टू नंबर, तो ऐसे ड्रॉ किया, और जो भी इसमें एंट्री है सब्जेक्ट है, सपोज मैथ्स है, इसमें मैथ्स लिख दो। नेक्स्ट फिर आपने स्पेस छोड़ना है, then second bar you will take, okay। So like this, now choose a suitable scale which shall determine the height of the bars। अब आप y axis पे क्या लेंगे, according to numbers, suppose all are multiples of 10, तो आप 10 से स्टार्ट कर दो, 10 फिर 20, आप 10 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 10 के बाद 15 नहीं लेंगे, ओके। आप सेम डिफरेंस लेंगे, 10 20 30। अगर आप 5 से स्टार्ट कर रहे हो तो 5 10 15, अगर आप 20 से स्टार्ट कर रहे हो तो 20 40 60, यानी 20 के मल्टीपल्स, राइट। और इनका डिफरेंस भी क्या होगा यहाँ पे, सेम। देन लोकेट द हाइट्स ऑफ डिफरेंट बार्स अकॉर्डिंग टू स्केल। फिर हम डाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें बार कितनी हाइट पे लेना है, राइट। On x axis draw bars of equal width according to the required height and keep the distance between the bars the same। As I told you, इनके बीच की जो distance होगी it should be same, और इनकी जो width होगी, जो size होगा, that must be same, okay। Now you can see this is a bar graph, it looks very attractive क्योंकि इनके बीच की जो हमने स्पेस लिया है वो भी सेम है बार्स के बीच में, और जो इनकी विड्थ है दैट इज ऑल्सो सेम। ये इन्होंने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया है। एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी है एज कंपैरिजन टू ऑन अ प्लेन पेपर, लेकिन यू मस्ट नो ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है और प्लेन पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो सी हियर एग्जाम्पल 1, a certain school had the following number of students enrolled for various years। एक स्कूल में डिफरेंट ईयर्स में एडमिशन हुए, लाइक ईयर 2017 में 800, 18 में 750, 2019 में 830, 2020 में 870, 21 में 920 एंड 22 में 950। So draw a bar graph to represent the above information। अब हमें इस information के थ्रू एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बार ग्राफ के लिए as I told you, first you will draw two axes OX and OY, x axis and y axis। ये हमने ड्रॉ कर लिया, okay। Now second step, on the x axis mark the places for 6 bars equal in width and equal distance apart। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ईयर्स है तो 6 बार्स हम लेंगे।
तो एज आई टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ स्केल हम उसको मार्क कर सकते हैं, और अगर आप ग्राफ पेपर पे करते हो तो ये आपको वन स्क्वायर दिखाई देगा, इतना इतना हम गैप इनमें छोड़ते जाएंगे। फाइन, ओके। नाउ अब आपके पास क्या करना है, आपने थर्ड वन राइट द वेरियस ईयर्स बिलो द मार्क्ड स्पेस। तो यहाँ पे जो भी आपने मार्किंग की है वहाँ पे आप ईयर्स लिख देंगे 2017, 18, 19 till 22, right? Now choose an appropriate scale as the maximum strength is 950. We can take the scale 1 unit length for 100 students. आपने नंबर्स देखने हैं, जो नंबर्स हैं वो 100 के मल्टीपल हैं, मीन्स ऑल आर नॉट मल्टीपल बट लाइक 750 है तो वी नो 750 इज बिटवीन 700 एंड 800। ऐसे ही 950 है, 950 इज बिटवीन 900 एंड 1000। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल चूज कर लेंगे 10 स्मॉल डिवीजन, मीन्स एक जो हमने स्क्वायर है उसको हमने इक्वल टू लिया 100 स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे हमने 100 से स्टार्ट किया, then 200, then 300, then 400, like this. Okay, so now mark the numbers 100, 200 up to 1000 on the y-axis at unit length interval. Okay, तो आप देखो आपने 2 lines draw कर दी, years mark कर दिए and यहाँ पे number mention कर दिए. Now write down what is this years and what is this number of students. And you have to write scale, this is very important. So scale 10 small division, यानी हमने एक बॉक्स को यूज किया है 100 स्टूडेंट्स के इक्वल। फाइन, स्केल जो है हम y एक्सिस का लिखेंगे कि y एक्सिस पे हमने नंबर्स कैसे लिए हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट हमारा क्या है 2017। 2017 में कितने नंबर हैं 800, तो हम 2017 पे बार ड्रॉ करेंगे जिसकी हाइट कहाँ तक जाएगी 800 तक, ओके, विद द हेल्प ऑफ रूलर। देन द नेक्स्ट इज 2018 में 750 है। 750 एज आई टोल्ड यू इट इज लाइंग बिटवीन 700 एंड 800। इस बॉक्स में 10 लाइंस हैं, तो आप जो फिफ्थ लाइन सपोज ये है फिफ्थ वन, तो यहाँ तक आपकी क्या आ जाएगी हाइट 750 की हाइट। 2018 आपने स्पेस छोड़ना है, देन ड्रॉ नेक्स्ट बार। सिमिलरली फॉर 2019 यू विल ड्रॉ नेक्स्ट बार दैट इज 830, यानी 800 और 900 के बीच में 850 से नीचे दिस इज 830। फिर आप गैप छोड़ देंगे इक्वल गैप, फिर 20 के लिए 870 है। 870 मीन्स बिटवीन 800 एंड 900, और 850 से थोड़ा सा ऊपर दैट इज 870। फिर कम टू नेक्स्ट 21 पे आएंगे दैट इज 920, तो 900 और 1000 के बीच में आएगा। 950 से थोड़ा सा नीचे लेंगे दिस इज 920, ओके। फिर सेम गैप छोड़ेंगे, देन द नेक्स्ट इज 950, यानी 900 और 1000 के बीच में 950। I hope it's clear to you. So here they have given above 2019, construct a bar up to 800 as I told you, and then count 3 small lines corresponding to the given strength of 830. ओके, क्योंकि 10 लाइन्स है बीच में, तो 830 कहाँ पे आएगा 1 2 3 लाइन्स पे, थर्ड लाइन पे दैट इज 830, बिकॉज फिफ्थ लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 850, ओके। तो सेम यू कैन मार्क ओवर हियर, एंड सिमिलरली फॉर 2020 एज आई टोल्ड यू 21 एंड 22। अब आप इनको शेड करना चाहते हैं तो आप इनको कलर जो भी एज यू विश इसको आप कलरिंग कर सकते हैं। So it is looking very attractive. I hope it's clear to you. Now reading of bar graph। अब हमें ड्रॉ करना आ गया है, लेकिन समटाइम्स हमें क्वेश्चन में बार ग्राफ गिवन होगा, उसकी हेल्प से हमें आंसर देना है।
So reading of the bar graph is a process of interpreting the bar graph to gather information. कैसे रिजल्ट फाइंड आउट करना है हमें ये बार ग्राफ एक गिवन है. एग्जाम्पल 2, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग अ स्मॉल हिल स्टेशन ड्यूरिंग 5 years. ड्यूरिंग 5 years दे रखा है हमें कि टूरिस्ट ने एक प्लेस को विजिट किया. नाउ ए पार्ट इन विच ईयर वर देयर मैक्सिमम टूरिस्ट. आप देखो बार्स हैं, डिफरेंट बार्स हैं, और जो सबसे बड़ा होगा means that is representing bigger number. So they are asking in which year were their maximum tourists. So this is the highest one, yani 800 in 2019. So answer is 2019. B part, in which year were their minimum tourists. सबसे छोटा बार किसमें है? 450 in 2020. So answer is in 2020. Now C part, how many tourists visited the station in 2022. 22 में कितने टूरिस्ट ने विजिट किया? That is 750. So answer is 750. Now D part, how many tourists visited in 2021. 21 में कितने टूरिस्ट ने विजिट किया? 600. So answer is 600. Very easy. बस आपने बार को देखना है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है. जैसे ये है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन से नंबर के? दैट इज 600. ओके. देन ई पार्ट, हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड इन द ईयर्स 18 to 22. तो 18 में हाउ मेनी आप देखेंगे 700, 19 में 800, 20 में 450, 21 में 600 एंड 22 में 750. तो आप इन सबको ऐड कर देंगे. आंसर इज 3300 टूरिस्ट. राइट. आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now exercise 9.2 is given over here. Like the first question, study the bar graph given and answer the question. Like A part, what information does the bar graph give? आपके पास क्या है? Years है and number of bikes manufactured. यानी it is showing what? Number of bikes manufactured in years 2016 to 2022. Okay, this information we are getting. Now what scale has been chosen? So scale is 10 small division equals to 200 bikes. 1 unit equals to, यहाँ पे आप देखो 200, 400, 600 और यहाँ पे mention भी है. So 1 unit length equals to 200 bikes. In which year was the production of bikes minimum? सबसे कम किस ईयर में प्रोडक्शन हुआ? दिस इज द स्मॉलेस्ट. सो इन 2016. ओके, इन 2016. इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स मैक्सिमम? सबसे बड़ा बार दिस वन, दैट इज इन 2022. देन ई पार्ट, इन विच 2 years वॉज द प्रोडक्शन द सेम. सेम प्रोडक्शन कब था? दिस वन 18 and 20 में. Okay, and now how many bikes were manufactured in the year 2017? 2017 में how many bikes? देखो यहाँ पे 800 है और यहाँ पे 1000 है. इसके बीच में mid, that is 900. Okay, 19 में 1200 corresponding to 1200. Then 21 में it is corresponding to, it is between 1400 and 1600. So this is 1500. Okay, so like this you can read the bar graph and then give the answers of the questions. Now there is one bar graph, more bar graph, that is the double bar graph. So अब इसको कैसे रीड करना है? Like fourth question, read the bar graph shown in this figure and answer the following question. दिस इज द डबल बार ग्राफ. इसमें हम दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइस एंड व्हीट. ओके, एंड हेयर
प्रोडक्शन ऑफ द राइस एंड व्हीट इन डिफरेंट स्टेट्स, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास, यूपी है, वेस्ट बंगाल, एमपी, महाराष्ट्र एंड हरियाणा, राइट. एंड हेयर प्रोडक्शन इन 1000 टन्स, ओके. एंड हेयर 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 2000 टन. हमने एक बॉक्स को 2000 के इक्वल लिया है, जिसको हमने 24, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया इन 1000 टन्स, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2000 4000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये हमारा 1000 में है, ओके. सो रीड दिस बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. What information is given by this bar graph? So production of rice and wheat in different states. Okay, this is showing production of rice and wheat in different states. Now B part, which state is the largest producer of rice? सबसे ज़्यादा राइस कौन प्रोड्यूस करता है? तो राइस वाला आप देखोगे ये येलो वाला है, एंड व्हीट वाला जो बार है वो ग्रीन वाला है, ओके. दिस डबल बार ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इजी. इसमें आपने क्या करना है, उसमें हम सिंगल बार्स लेते हैं, इसमें हमने 2 बार साथ साथ लेने हैं. गैप दोनों में सब में सेम होगा और दोनों की विड्थ आपने सेम लेनी है. बस इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें 2 बार्स आ जाएंगे जो साथ साथ आएंगे, जैसे राइस एंड व्हीट ऑफ यूपी, राइस एंड व्हीट ऑफ वेस्ट बंगाल. आपने ड्रॉ अकॉर्डिंग टू द नंबर ही करना है, जो इसकी हाइट है वो अकॉर्डिंग टू द डाटा ही होगा, ओके. अब जैसे इन्होंने पूछा है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो राइस यानी येलो वाला बार, येलो बार हम देखेंगे वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा किस में है, दैट इज वेस्ट बंगाल. सो वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस अकॉर्डिंग टू दिस बार, okay, West Bengal. Then C part, which state is the largest producer of wheat? अब wheat किस state में सबसे ज़्यादा हो रहा है? Wheat is in not in Haryana, wheat is in UP. सबसे बड़ा बार UP में है, so that is UP. Now, which state has the maximum production of rice and wheat? अब आप देख सकते हैं कि कौन से state में rice and wheat सबसे ज़्यादा है. You can compare it. And then which state has the minimum production of wheat and rice, then you can find it. So it's very easy and interesting. So you can try these questions and you know how to draw it, you know very well. Any problem, then we can discuss it. So now we are coming to summary. Stat is considered as the science of collection, organization, presentation, analysis and interpretation of न्यूमेरिकल डाटा. उसे कलेक्ट करना, उसे अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर प्रेजेंट करना, फिर उसको देखना, फिर उसमें से रिजल्ट फाइंड आउट करना, दैट इज द साइंस, यानी दैट इज द स्टैटिस्टिक्स, ओके. द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू सर्टेन आइटम और सब्जेक्ट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज इज नोन एज डाटा. The study of numerical data through picture or graph is known as pictorial representation. And then pictorial representation of the numerical data using picture symbol is called the pictograph of the data. A bar graph or a bar chart is a pictorial representation of the numerical data by a number of bars or rectangles of uniform width drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. And bar graph help in easy comprehension of the given data. So I hope it's clear to you. Now some MCQs given over here, like take the correct option. The first one, in pictograph 10 trees are represented by this, okay. So 15 trees will be represented by, अब देखो 10 यानी 10 के लिए हमने 2 सिंबल यानी 5 5 ले लिया, तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, this one 5 5 and half of 5, right. So now the next is, in a bar graph, a bar 28 mm tall represent 280 cars. So 300 cars will be represented by a bar of height 30 mm, okay. Now study this graph and answer the question.
here graph given, age in years given and number of persons given over here. So what is the total population of the town? तो हम क्या करेंगे इसमें, first we will find 10 to 19 how many persons, these are number of persons, 10 to 19 1400, 20 to 19 1200, then 30 to 39 1100. तो हम सबके जितने भी bars हैं उसके according we will find the number of persons and then we can add it. Okay, then the fourth one, what is the number of persons in the age group of 60 to 69? 60 to 69 में कितने number of persons हैं? It is according to, that is 800. Okay, so answer is 800. Now how many more persons are there in the age group of 10 to 19 years, that in the age group of 30 to 39 years? 10 to 19 में we have 1400 और 30 to 39 में we have 1100. So how many more? 300. Okay, so answer is 300. So now one mind booster is given, you can try this one on your own. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.